Hello student, today we shall study the algebra of statements. In that we will see 9 laws, idempotent law, second one commutative law, associative law, fourth distributive law, identity law, then complement law, De Morgan's laws, conditional laws and last absorption law. So we start from first laws, idempotent laws. ये साइड में मैं और के लॉज लिख रही हूं, ये साइड में एंड के. ठीक है. आइडेम्पोर्टेंट लॉज P और P is equivalent to P और P is equivalent to P. Same for and. P and P is equivalent to P. Next commutative law. P और Q. P और Q is equivalent to Q और P is equivalent to Q और P. Same for and. P and Q is equivalent to Q and P. P and Q is equivalent to Q and P. Next associative law. In that we'll using here 3 statements P, Q, R. P और Q और R is equivalent to P और Q और R. P और Q और R is equivalent to P और in bracket Q और R. मतलब ब्रैकेट चेंज कर सकते बाय associative law. Same for here and. P and Q in bracket and R is equivalent to P and in bracket Q and R. मतलब ब्रैकेट चेंज कर सकते हैं बाय associative law. Third one is distributive laws. Distributive law is P और Q and R. P और Q and R. P और Q. Here or here and. So P और Q and P और R. For and. P and Q or R is equivalent to P and Q or P and R. Distributive law and associative laws are different because here in associative law or same connectives and same connectives. In distributive laws these connectives are different. Or and connectives and और connectives are different. connectives different हो गए तो आपको क्या यूज करना है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. और कनेक्टिव सेम है एंड है और है तो एसोसिएटिव लॉ यूज होगा. ठीक है. नेक्स्ट आइडेंटिटी लॉ. इन आइडेंटिटी लॉ P और C. P और T. P और C होगा. C मीन्स कॉन्ट्रेडिक्शन ऑब्वियसली एंड T मीन्स टोटोलॉजी. P और C is equivalent to P and P और T is equivalent to T. And के लिए P and C, P and T. यहाँ पे P and C is equivalent to C. P and C is equivalent to C and P and T is equivalent to P. ठीक है. Next complement law. Complement law is P और negation of P is equivalent to T. Tautology. मतलब P और negation of P is equal to tautology. P and negation of P is equal to contradiction, that is small c. P or negation of P is T. P and negation of P is equivalent to C. Next one, De Morgan's law. This De Morgan's law is same as negation of first negation of for 2 negations for that first 2 logical connective, that is and or, conjunction and
disjunction, right? De Morgan's law, negation of P or Q. Negation of P and और होगा तो and लिखना है, negation of Q. Negation of P and Q is equivalent to negation of P or negation of Q. These two are De Morgan's law, means same as negation of conjunction and disjunction. Next, conditional laws. Conditional laws means obviously conditional means implication, right? P implication Q is equivalent to negation of P or Q. P implication Q is equivalent to negation of P or Q. Next, double implication, double biconditional. P double implication Q is equivalent to negation P or Q and negation Q और P. ठीक है, निगेशन में क्या था, कंडीशनल के निगेशन में क्या था, निगेशन ऑफ P इम्प्लीकेशन Q में हम लोग क्या लिखते थे, P एंड निगेशन ऑफ Q. और डबल इम्प्लीकेशन में सपोज निगेशन ऑफ P डबल इम्प्लीकेशन Q इज इक्वल टू P एंड निगेशन ऑफ Q और Q एंड निगेशन ऑफ P. थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ पे बराबर, क्योंकि यहाँ पे निगेशन साइन नहीं है. P implication Q is directly equivalent to negation of P or Q, and P double implication Q is equivalent to negation P or Q same and negation of Q or P. Now last, absorption law, which is very simple. P or P and Q, P or P and Q is equivalent to single P. P and P or Q also equivalent to single P. P or P and Q is also equivalent to P, and P and P or Q is also equivalent to P. This is absorption laws. Now we have seen 9 laws. Again we will revise it. Idempotent laws. P or P is equivalent to P. P and P is equivalent to P. Commutative laws. P or Q is equivalent to Q or P. P and Q is equivalent to Q and P. Associative laws. P first bracket P or Q or R is equivalent to P or second bracket Q or R. P and Q and R is equivalent to P and Q and R. Distributive law. P or Q and R is equivalent to P or Q and P or R. Here P and Q or R is equivalent to P and Q or P and R. Next, identity law. P or C is equivalent to P. P or T is equivalent to T. Next, P and C is equivalent to C. P and T is equivalent to P. Next, complement law. P or negation of P is equivalent to T. P and negation of P is equivalent to C. Next, De Morgan's law, same as negation of conjunction and disjunction. Negation of P or Q is equivalent to negation of P and negation of Q. Negation of P and Q is equivalent to negation of P or negation of Q. Conditional laws. P implication Q is equivalent to negation of P or Q. P double implication Q is equivalent to negation of P or Q and negation of Q or P. And last, absorption law. P or P and Q is equivalent to P. P and P or Q is equivalent to also P. Now we will see how we can use these laws in our example. Okay. Now we will see example.
क्वेश्चन इज विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल शो दैट। जहां पे आपको क्वेश्चन आएगा कि विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल यूज करके हमें पता है कि इक्विवेलेंट कैसे प्रूव किया जाता है, बराबर। नेक्स्ट ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, और यूजिंग द अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट प्रूव दैट। सेम तरीके से ही सॉल्व करना है बाय यूजिंग लॉज। विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल शो दैट, और यूजिंग द अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट प्रूव दैट। नाउ क्वेश्चन इज P and in bracket, next bracket negation of P or Q or negation of Q bracket close equivalent to P हमें प्रूव करना है, ठीक है, और शो करना है इक्विवेलेंसी। नेक्स्ट, सो वी विल स्टार्ट विथ LHS. Obviously our LHS is this P and square bracket simple bracket negation of P or Q or negation of Q box bracket closed। यहां पे क्या यूज कर सकते हैं, अभी कौन सा लॉ यहां पे पहले यूज हो सकता है, कौन सा लॉ यूज होगा कि यहाँ पे और है सेम है, बराबर, और है और यहाँ पे भी और दिख रहा है, दोनों भी सेम है। जब तीन स्टेटमेंट दिए होंगे और दोनों भी कनेक्टिव सेम होंगे तो हम लोग कौन सा लॉ यूज कर सकते हैं, थर्ड वन लॉ, राइट, एसोसिएटिव लॉ। सो P एंड यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट चेंज करके ले सकते हैं बाय व्हाट, एसोसिएटिव लॉ। सो निगेशन ऑफ P हम लोग बाहर लिख के ये दो ब्रैकेट में लिख सकते हैं, और Q और negation of Q by using associative law, ठीक है। नेक्स्ट आफ्टर दैट ऑब्वियसली क्या दिख रहा है, ऑब्वियसली ये ब्रैकेट में क्या, Q और negation of Q, Q और negation of Q, कि किसमें यूज होता है, कॉम्प्लीमेंट लॉ, राइट, Q और negation of Q। क्या लॉ था, P और निगेशन ऑफ P इज इक्वेलेंट टू T एंड P और एंड निगेशन ऑफ P इज इक्वेलेंट टू C। लेकिन यहाँ पे क्या है, और है तो क्या आएगा, T आएगा। बाय यूजिंग व्हाट, कॉम्प्लीमेंट्री। नाउ नेक्स्ट आफ्टर दैट, यहाँ ब्रैकेट में क्या है, यहाँ पे निगेशन ऑफ P और T, निगेशन ऑफ P और T। तो हम लोग निगेशन ऑफ P को एक ही स्टेटमेंट मानेंगे, बराबर है। सो सम स्टेटमेंट और T, सम स्टेटमेंट और T है तो कौन सा लॉ यूज करेंगे, आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ में P और T इज इक्वेलेंट टू P और T, P और C था, बराबर, P और C इज इक्वेलेंट टू P एंड P और T इज इक्वेलेंट टू T। आइडेंटिटी लॉ। नाउ P एंड T, P एंड T, P एंड T में क्या दो लॉज थे वहां पे आइडेंटिटी में, P एंड C इज इक्वेलेंट टू C था एंड P एंड T इज इक्वेलेंट टू क्या था, P था। बाय यूजिंग यह सो सेम आइडेंटिटी लॉ। अंडरस्टूड, अगेन विल सी। LHS मैंने लिया, आफ्टर दैट यहाँ पे सेम थे, सेम कनेक्टिव्स थे, तो मैंने किसी ब्रैकेट चेंज किया। ये ब्रैकेट चेंज करना मतलब कौन सा लॉ यूज करना, एसोसिएटिव लॉ यूज किया। उसके बाद यहाँ पे तो कुछ चेंजेस नहीं हो सकते, लॉज नहीं यूज हो सकता, लेकिन ये ब्रैकेट में मैंने देखा कि हाँ चेंज हो सकता है। क्या लिखा है, Q और निगेशन ऑफ Q, तो यहाँ पे मैं कौन सा लॉ यूज कर सकती थी, कॉम्प्लीमेंट लॉ। तो मैं Q और निगेशन ऑफ Q क्या, T आया मेरा, ठीक है। नाउ हियर यहाँ पे मैंने यहाँ पे तो कुछ यूज नहीं कर सकती थी, तो ये ब्रैकेट में क्या था, निगेशन ऑफ P और T और T। सो यहाँ पे मैंने कौन सा लॉ यूज किया, आइडेंटिटी लॉज यूज किया और T लिखा। लास्ट P एंड T था, अगेन मैंने आइडेंटिटी लॉ यूज किया और आया
P, which is equal to RHS, which is equal to RHS. So therefore LHS equal to RHS. Now we will see one more example of this. Now we will see one more example based on that algebra of statement. Second example is in bracket P and Q bracket closed, or bracket P and negation of Q bracket closed, or in bracket again negation of P and negation of Q bracket closed, which is equivalent to P or negation of Q. P or negation of Q. So we start from LHS. Our LHS is this P and Q, or P and negation of Q, or negation of P and negation of Q. ठीक है. नेक्स्ट क्या ऑब्जर्वेशन रहेगा आपका? P एंड Q दिया है, सेकेंड ब्रैकेट में क्या है, और P एंड निगेशन ऑफ Q. P सेम है, ये भी कनेक्टिव सेम है, और है यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन सा लॉ यूज कर सकते हैं एक साथ लेके? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज हो सकता है. कैसे? P सेम, P राइट, P क्या होगा? एंड P एंड इन ब्रैकेट Q और निगेशन ऑफ Q, Q और निगेशन ऑफ Q बराबर. सो इसको स्प्लिट करेंगे और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लिखेंगे तो क्या होगा? P एंड Q और P एंड निगेशन ऑफ Q, राइट. दिस थर्ड ब्रैकेट एज इट इज. यहाँ पे कौन सा लॉ यूज किया हम लोगों ने? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. ठीक है. नेक्स्ट यहाँ पे कौन सा ये लॉ यूज कर सकते हैं? यहाँ पे तो कुछ नहीं. हाँ, सेकेंड ब्रैकेट में क्या है? Q और निगेशन ऑफ Q. Q और निगेशन ऑफ Q, निगेशन और स्टेटमेंट एक साथ रहेगा तो ऑब्वियसली कौन सा लॉ यूज करते हैं? कॉम्प्लीमेंट लॉ. तो यहाँ पे और है, तो इसका आंसर क्या आएगा? T. P एंड ऑब्वियसली T और थर्ड ब्रैकेट एज इट इज. ठीक है. यहाँ पे कौन सा लॉ यूज किया? कॉम्प्लीमेंट लॉ. नेक्स्ट आफ्टर दैट P एंड T आए, तो T या C किसी के साथ रहता है तो हम लोग कौन सा लॉ यूज करते हैं? आइडेंटिटी लॉ. सो P एंड T लिखा हुआ है, एंड है साथ में, तो ऑब्वियसली क्या आएगा आंसर? ओनली सिंगल P और दिस ब्रैकेट निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q. यहाँ पे कौन सा लॉ यूज किया? आइडेंटिटी लॉ. ठीक है. नेक्स्ट यहाँ पे और है, यहाँ पे एंड है, तो यहाँ पे कौन सा लॉ यूज होगा स्प्लिट करने के लिए? अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. सो P और निगेशन ऑफ P एंड P और निगेशन ऑफ Q. कौन सा लॉ? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. ठीक है. नेक्स्ट P और निगेशन ऑफ P और निगेशन साथ में रहेगा तो कौन सा लॉ यूज करते हैं? राइट, कॉम्प्लीमेंट लॉ. सो P और निगेशन ऑफ P है, और है साथ में, तो आंसर क्या आएगा? T, स्मॉल t एंड P और निगेशन ऑफ Q. कौन सा लॉ? आइडेंटिटी लॉ. ओके. नेक्स्ट T, स्मॉल t है, किसके साथ? ये पूरे ब्रैकेट के साथ. T एंड लोग ये पूरे ब्रैकेट को सपोज एक ही स्टेटमेंट मांगते हैं तो T एंड सम स्टेटमेंट, एंड में T है किसी के साथ, तो ये अगेन यहाँ पे कौन सा लॉ यूज होगा? कौन सा लॉ यूज करेंगे यहाँ पे? ऑब्वियसली T एंड P और निगेशन ऑफ Q है,
तो अब इसलिए क्या आएगा, दिस ओनली। टी के साथ कोई स्टेटमेंट रहता है एंड में, तो क्या आता है, दैट स्टेटमेंट। ओके, विच इज इक्वल टू RH। ओके, फर्स्ट हियर एंड था और यहाँ पे दोनों में और था, यहाँ पे एंड था, तो हम लोगों ने फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज किया। आफ्टर दैट यहाँ पे टी आया, क्यू और निगेशन ऑफ क्यू था, तो हम लोगों ने कौन सा लॉ यूज किया, कॉम्प्लीमेंट लॉ। यहाँ पे स्मॉल टी आया। नेक्स्ट टी और सी आता है साथ में, तो कौन सा लॉ यूज होता है, आइडेंटिटी लॉ। सो पी और दिस ब्रैकेट लास्ट ब्रैकेट सेम एज इट इज। नेक्स्ट पी, यहाँ पे और था, यहाँ पे एंड था, अलग अलग थे कनेक्टिव्स, तो हम लोगों ने कौन सा लॉ यूज किया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज हुआ। ठीक है, स्प्लिट किए ब्रैकेट्स में। देन पी और निगेशन ऑफ पी बचा, तो पी और उसके साथ उसका निगेशन आता है स्टेटमेंट का, तो कौन सा लॉ यूज होता है, कॉम्प्लीमेंट लॉ। तो टी आया स्मॉल एंड पी और निगेशन ऑफ क्यू। सो टी एंड कोई स्टेटमेंट है साथ में, तो कौन सा लॉ यूज होता है, आइडेंटिटी लॉ यूज होता है। सो स्टेटमेंट एज इट इज मतलब पी और निगेशन ऑफ क्यू मतलब अवर RHS। And that way we have seen that how to prove the equivalency by using algebra statements.